Hello everyone, welcome back to My Body Life and my name is Rahul. Believe me guys, I feel amazing talking with you people and you have been pretty regularly liking and viewing our videos and thank you so much for such an awesome response. Now today I'll be talking about very common health issue which has affected the general public. Now this has not done any harm to athletes or the active people who have been doing exercises regularly, but this has affected the common man, common people, especially ladies who have been working so hard. And this health issue does not see what age group you are at. This can actually start from as early as 15 years and till your old age. This can really trigger the pain and affect your lifestyle. So this health issue is known as cervical spondylitis. Now most of you guys would be able to relate to this because you have been living with it, and believe me, you have probably tried a lot of things. You have done several things to treat this and to get rid of the pain of cervical, but still you do not know what exactly to do, what all exercises you can perform at your home, at your place. The pain of cervical can be managed and can be treated with very simple and basic exercises. Taking a painkiller for pain management of cervical is a temporary solution, but if you continue doing these basic exercises, you can get rid of the pain. So instead of taking painkillers, you can rather combine a good stack of natural food supplements with the exercises to get rid of this pain and have the powerful beneficial effects of both. So to know about the supplements, you can inbox me on my email ID, which is given in the description. So I'll be demonstrating each and every exercise step by step, and I'll take help of Ankur for that. So let us welcome Ankur to help us demonstrate the exercises and techniques. So welcome Ankur. Hello guys. Let us together show the exercises, how the exercises are performed. Yes, sure. So guys, let me tell you where the cervical originates from, what is the cause of cervical. Let me tell you, cervical is a lifestyle disorder and the major cause is your work, like your posture. This is a posture. तो अगर आपका काम जो है वो ज़्यादा नेक को झुका के करने का है, अपने हेड को झुका के करने का है, फॉर एग्जांपल मोर ऑफ रीडिंग और पेंटिंग, या डेस्क जॉब ज़्यादा है, या कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं और बहुत ही कंसंट्रेशन से अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ सर्वाइकल. सो अभी हम देखते हैं कि सर्वाइकल एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होता है. इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि C1 से C7 विच इज़ सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें 7 वर्टिब्रे होते हैं. C1 टू C7 सर्वाइकल की शुरुआत यहीं से होती है. सो यू कैन से जो इसका पेन है वो एक्चुअली में आपका मेजर पेन एरिया जो है वो नेक के पीछे प्लस आपका ट्रेपीजियस और इंटरनली जो रम्बॉइड मसल होता है विच इज़ शेप ऑफ काइट, उसमें थोड़ा सा पेन ये शूट करता है. एंड इफ़ द केस इज़ वर्स तो ये जो पेन है आपके शोल्डर से लेके इवन आपके जो फिंगर्स हैं, पूरे हाथ में चलता हुआ आपके फिंगर्स तक जा सकता है. So let us start with our first exercise. For this you need to take a position wherein you have to keep this angle between the forearm and the upper arm at 90 degrees. 90 degrees पे हम ये exercise शुरू करेंगे. This is our starting point for the exercise. और अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, just like we do shoulder presses. राइट. सो अब आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे अपने जो शोल्डर मसल है उसको पूरा स्क्वीज करेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दिस बैक स्लोली. राइट. ये आप
इस एक्सरसाइज को करीब करीब 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम 2 से 3 रेपिटेशंस आपको करके दिखा रहे हैं। यू कैन टेक दिस अप टू 10 रेपिटेशंस। यस, सो दिस विल बी 1, bring it back, again you can take it up. Just remember to squeeze the muscle and straighten up your elbows. बिल्कुल ऊपर सीधी हो जाएंगी। जब elbows straight होंगी तभी आपके जो shoulder पे है वो proper squeeze आ पाएगा। This is a movement exercise क्योंकि सर्वाइकल में आपकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है, तो हम धीरे धीरे से आराम से एक पर्टिकुलर बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज सर्वाइकल का मेन कॉज है इनएक्टिविटी। Now let's come to the second exercise. This exercise is basically for shoulder girdle. उसी पर्पस के लिए कि हमें अपने शोल्डर को मोबाइल बनाना है, उसके जॉइंट को मोबिलाइज करना है। So इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने की पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। आपका जो फोर आर्म है और अपर आर्म है वो बिल्कुल 90 डिग्रीज पे रहना चाहिए। Now what you need to do is एल्बोस को यहीं पे रखते हुए, इनको बिना हिलाए हुए, you have to bring the arms or forearms down till your forearm comes to the parallel of the floor। ठीक है, ये आपके फ्लोर के पैरेलल हो जाना चाहिए और वापस से आप यहीं पे मूव करेंगे। सो नाउ व्हाट यू कैन सी इज दिस जॉइंट विच इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये उसी तरह से मूव हो रहा है। एंड यू कैन कंप्लीट योर 10 repetitions for this exercise also, right? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा आगे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी हम फ्लोर के पैरेलल तक लेके जा रहे थे, अब यू नीड टू गेट दिस डाउन एंड आपकी एल्बोज को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दिस विल रियली इफेक्ट द एरिया ऑफ द पेन। यहाँ पे आपको फील होगा कि आपके पेन वाले एरिया पे ये थोड़ा सा आपको सूदिंग पॉइंट दे रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इज 10 repetitions आप इसके भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने जो आर्म्स हैं उनको फ्लोर के पैरेलल रखना है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज रिट्रैक्ट योर आर्म्स। आप अपना पीछे इस आर्म्स को लेके आते हैं और फ्लोर के पैरेलल ही आपकी आर्म्स और एल्बोज रहेंगी। इसको हम अगर ऑपोजिट साइड से देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। अभी हम उल्टी साइड पे देख पा रहे हैं कि जो ये स्कैपुला बोन है ये आपस में मिल जाएगी, मतलब स्क्वीज होगी और आपके रेयर डेल्ट्स इसमें एक्सरसाइज पे वर्क कर रहे होंगे। साथ के साथ रम्बॉइड जो अंदर मसल है वो भी वर्क करेगा। सो लेट अस डू लाइक 3 repetitions फॉर दिस एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं कि ये एरिया जो है कंप्लीट एरिया इस एक्सरसाइज में वर्क कर रहा है। फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए भी हमें हाथ जो है, जो अपनी आर्म्स हैं वो इसी पोजीशन में रखनी है। आप देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल कॉमन पोजीशन है और इस पोजीशन से हम बहुत सारी एक्सरसाइज और वेरिएशंस कर सकते हैं अपने शोल्डर और नेक के लिए, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो एल्बोज हैं वो हमें आगे की तरफ ज्वाइन करनी है। इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे और वापस जब इसको खोलेंगे तो आप बिल्कुल पीछे ले जाके इसको जो स्कैपुला बोन है आपस में उसको मिलाने की कोशिश करेंगे और इस मसल को स्क्वीज करेंगे। मैं अभी आपको इसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी दिखाता हूँ। आप इसके 10 से 12 repetitions कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं एक्सरसाइज की तरह जो अभी हमने पहले करी थी। अब हम इसको पीछे से देखते हैं कि किस तरह से ये आपको नज़र आती है। ये देखिए, सेम आपकी जो स्कैपुला बोन है वो आपस में मिलने की कोशिश कर रही है और ये जो मसल है वो पूरे स्क्वीज्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी फ्रंट रेज है, जिसमें आपको हाथ अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जिसमें पाम्स आपके खुले होंगे और फिर आपको धीरे धीरे अपनी आर्म को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है और शोल्डर मसल को स्क्वीज करते हुए यहाँ पे एक पॉज देना है, थोड़ा सा
और फिर आप वापस अपनी आर्म को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाएंगे। सेम ऑल्टरनेटिवली आप दूसरी आर्म से यही टेक्निक को अपनाएंगे और बिल्कुल ऊपर ले जाके सो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री का मूवमेंट है पूरा हमारा इस एक्सरसाइज में। तीन बार आप ये रेपिटेशन जो है कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप इसको 10 बार तक बढ़ा सकते हैं। 10 बार आप दोनों हाथों से ये रेपिटेशन करेंगे, 10 राइट हैंड से और 10 जो है हम लेफ्ट हैंड से रेपिटेशंस को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं लैटरल रेज। इसमें भी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म से रहेगी और फिर आपके जो आर्म्स हैं वो साइड में खुलेंगी और इसको आप बिल्कुल ऊपर तक लेके जा सकते हैं। सिमिलरली ये भी 180 डिग्री का मूवमेंट हम रखेंगे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि लैटरल रेज जब हम करते हैं फिटनेस के लिए या बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए तो हम 90 डिग्रीज तक या फ्लोर के पैरेलल तक ही उठाते हैं, बट क्योंकि हम ये स्पेसिफिकली सर्वाइकल के लिए कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इसमें पूरा रेंज ऑफ मोशन इंक्लूड कर रहे हैं। 180 डिग्रीज का जो है वो रेंज ऑफ मोशन हम इसमें एक्सरसाइज में परफॉर्म करेंगे। लास्ट रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज का नाम श्रग्स है। श्रग्स के लिए भी आप जो अपने आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पाम्स को खुला हुआ रखेंगे और अभी आपको क्या करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए अपने जो शोल्डर्स हैं उनको जितना ऊपर लेके आ सकते हैं वो आप लाएंगे। इसमें हम एक गलती नहीं करेंगे कि आपको आगे अपने नेक को बेंड नहीं करना, राइट। इस तरह से आप बेंड करके श्रग्स नहीं करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे और अपने शोल्डर्स को ऊपर तक लाके ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज करेंगे और वापस जब आप नीचे लेके जाएंगे तो ट्रेपीजियस मसल को पूरा आप खोलेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 बारी करेंगे, मतलब 10 रेपिटेशन इसके परफॉर्म करेंगे और आप अपने ट्रेपीजियस मसल स्पेसिफिकली जहाँ पे सर्वाइकल जो है वो इफेक्ट करता है वहाँ पे आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे और ऑब्वियसली यहाँ पे आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो है वो हो रही। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस का सेट है वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि हम रेजिस्टेंस तो पूरा देते हैं बट हमारा मूवमेंट वहीं पे होता है। मूवमेंट एक्चुअली में नहीं होता है, वो स्टेबल होता है, एक ही जगह पे हम रेजिस्टेंस को देते रहते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो आपका फोरहेड पे रेजिस्टेंस देंगे। किस तरह से? फ्रंट, इस तरह से हम आगे अपने फोरहेड पे जो है अपनी पाम लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि पाम से आप अपने नेक को या फोरहेड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं और जो आपका हेड है वो आपके पाम को रेजिस्ट कर रहा है और आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आप उसी पोजीशन पे स्टेबल हैं, बट ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और सर्वाइकल हमें हो क्यों रहा है? सर्वाइकल हमारे मसल्स की वीकनेस की वजह से हो रहा है और जब हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे सर्वाइकल में बहुत ही अमेजिंग फ़र्क आना शुरू हो जाता है और हमारे जो पेन है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। वही सेम एक्सरसाइज हम आपको साइड पोजीशन से करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका पोस्चर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं आपका नेक बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप अपनी आर्म लेके आ रहे हैं, इस एल्बो को जो अपर आर्म है वो आप फ्लोर के पैरेलल रखिए। फ्लोर के पैरेलल रखेंगे तो आप बहुत ही ईजिली फोर्स लगा पाएंगे। अब आप देखेंगे ये इतना अच्छी तरह रेजिस्ट कर रहा है कि शिवर हो रहा है, इसकी बॉडी जो है वो शिवर हो रही है। दैट मीन्स ही इज रेजिस्टिंग हिमसेल्फ और ये एक बहुत अच्छे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसमें टाइम कितना होना चाहिए, मतलब आप कितने समय तक इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टार्टिंग में 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, 2 सेकेंड्स का रेस्ट दें और फिर से 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। सो इन टोटल आप
10 रेपिटेशंस इसी तरह से करें। 5 सेकेंड होल्ड, 2 सेकेंड का रेस्ट, 5 सेकेंड होल्ड, 2 सेकेंड का रेस्ट। नेक्स्ट वेरिएशन जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का है वो है साइड से हम जो है पाम से अपने नेक, अपने हेड को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ला रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में हम साइड से अपने हेड को रेजिस्ट कर रहे हैं। आप दोनों साइड से बारी बारी कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज 5 बार इधर से कर सकते हैं, 5 बार इधर से कर सकते हैं। सो इक्वली आप दोनों साइड से अपने हेड को रेजिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस का सेट जो है वो है हमारा स्ट्रेचिंग का, फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि जितनी हमारी मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना हमारे जो मूवमेंट है वो स्मूथ होगा और पेन जो है वो रिलीव होगा। टॉक्सिन्स हमारे मसल्स में से इजीली निकल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग से, राइट। तो फर्स्ट जो है वो हम फ्रंट नेक की स्ट्रेचिंग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी को समझ में आना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रंट नेक जो है उसकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए आपको अपना थंब है, आप किसी भी हाथ का थंब यूज़ कर सकते हैं। थंब से आप ऊपर की तरफ अपने नेक को पुश कर रहे हैं और जहाँ तक आपका चिन है वो ऊपर जा सकता है, प्लस आपके थंब से ऊपर पुश हो सकता है, वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नेक का पार्ट है, जो नेक है फ्रंट साइड, वो पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। आपको इस स्ट्रेच को 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके इसको आपको मिनिमम 3 बार करना है। तो इन टोटल आपका 30 सेकंड्स का जो स्ट्रेच है वो होल्ड होगा। नेक्स्ट जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको अपनी जो आर्म्स हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये आपके ट्रेपेजियस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है विद इंक्लूजन ऑफ नेक। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके अपने शोल्डर को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है और दूसरे हाथ से आपको ऑपोजिट साइड में अपना हेड को पकड़ना है और जो शोल्डर आप नीचे की तरफ झुका रहे हैं उससे ऑपोजिट साइड में आप अपने हेड को पुल करेंगे। इससे क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो नेक का मसल है वो पूरा स्ट्रेच हो रहा है टिल शोल्डर जॉइंट, राइट। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छा बढ़ा देगा और इसका भी सेम पैटर्न है कि आपको ये 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर हल्का सा पॉज देना है, रेस्ट देना है और दोबारा से 10 सेकंड होल्ड करना है। तो इस तरह से आपको ये 3 बार करना है। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये आपको दोनों तरफ से इसी तरह से करना है। तो पहले आप राइट साइड पे कर रहे हैं, फिर आप लेफ़्ट साइड पे इसी तरह से 3 बार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक्सरसाइज अगर आपको बहुत सीवियर सर्वाइकल इशू है तो आप ये परफॉर्म नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज बिल्कुल अगर आप बिगनर लेवल के हैं, मतलब सर्वाइकल आपका अभी शुरू ही हुआ है या थोड़ा सा समय उसको हो गया है और आपको वो परेशान कर रहा है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके नेक के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और पेन में बहुत ही आराम आपको देगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप दोनों हाथ अपना पीछे रखेंगे जैसे हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था और अपने नेक को आगे की तरफ बेंड करेंगे और पीछे जो आपका नेक है वो आप फील करेंगे कि पूरा स्ट्रेच हो रहा है। अगर इसी पोजीशन में हम घूम जाते हैं तो ये आप देखिए किस तरह से नेक जो है बैक ऑफ द नेक पूरा स्ट्रेच हो रहा है। सो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो सर्वाइकल को ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अंकुर। थैंक यू अंकुर फॉर योर टाइम और आपने बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन मेरे साथ मिलके दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गाइस। सो गाइज सर्वाइकल में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर सर्वाइकल आप को हो रखा है तो आपको अपने नेक को कभी भी राउंड नहीं घुमाना है इस तरह से। तो आप नेक को आप पूरा राउंड नहीं घुमाएंगे। इनफैक्ट आप अपने नेक को ये पोजीशन में
लेके जा सकते हैं, साइड टू साइड इस पोजीशन में ले जा सकते हैं और साथ में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इस तरह से। ये पोजीशन इज़ अलाउड। अंकुर ने आपको जो साइड वाली स्ट्रेचिंग है वो तो आपको करके दिखाई दी है, तो ये सब आप कर सकते हैं, बट राउंड आपको नहीं घुमाना है। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि घर पे रह के हम किस तरह से अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उनको मोबाइल कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं उनसे हम लड़ सकें, उनको हम ठीक कर सकें। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इनबॉक्स मी, मेरे आप ईमेल आईडी पे पर्सनल मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इवन अगर आप इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, जस्ट डू दिस रेगुलरली फॉर अबाउट अ मंथ, ट्वाइस अ डे, दिन में आप 2 बार इसको करिए। 10-10 रेपिटेशंस आपको करने हैं, और जो भी आपको फ़र्क महसूस हो, जो भी आपको इससे रिज़ल्ट आए, प्लीज़ एंड प्लीज़ उस रिज़ल्ट के बारे में, उस फ़र्क के बारे में आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए। आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। वी विल ऑल्सो प्रोग्रेस ऑन दिस सर्वाइकल इशू, और इसके बाद हम और भी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे जो आपको नई नई एक्सरसाइज की टेक्निक बताएगी। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।